Good morning, students. Today we are going to start the second chapter, solution. In solution chapter, today we will be discuss about the introduction of solution, types of solution, method to express the concentration of solution, solubility and factor affecting on the solubility. Let's start. First of all, what do you mean by the solution? Solution, it is a homogeneous mixture of two or more components. In which its ratio is not fixed, called the solution. Next is components of solution. Solution have two top parts, solute and solvent. The component which present in a small amount called solute. The component which present in large amount called solvent. An important thing is water is taken as universal solvent. Why it is so? Because water is able to dissolve the most of the components, most of the substance. That's why it is called the water is universal solvent. Now, the types of solution. On the basis of physical state of solution, solution are of three types: solid solution, liquid solution, and gaseous solution. Means, if the physical state of solution is solid, then it is called the solid solution. If the physical state of solution is liquid state, then it is said to be liquid solution. If the physical state is gaseous, then it is said to be the gaseous solution. For example, see, when solid to solid, means when the solute is solid and solvent both are solid, then it is called the solid solution, because physical state is solid. When the solvent is liquid, but when the solute is liquid and solvent is solid, then it is also called the solid solution. When the solvent is gas is the solute and the solid is solvent, then it is all these three is the solid solution. For examples we can say this is the example of alloys. Examples of alloys like brass, bronze, etc. Examples: brass, bronze, etc. Example of this type of solid solution is mercury amalgam, or we can say amalgam with zinc. Amalgam with zinc means it is the alloy of zinc, alloy of zinc with sodium metal. Here, adsorption of hydrogen gas over the palladium. Similarly, for liquid solution,
means physical state of solution is liquid. For example, when gas in liquid, when liquid plus liquid, when solid plus liquid, all these are the liquid solutions. For example, here we can say oxygen is dissolved in water. Oxygen plus water, we can say. We know that all the aquatic animals can survive. It is due to this process. Oxygen is dissolved in water. Liquid and liquid, example, alcohol plus water. Alcohol plus water. And the next one example is sugar plus water. Sugar plus water. All these are the example of this means liquid state. And the last one, third one is gaseous solution. Means the physical state is gaseous state. Like solid plus gas, gas plus gas, liquid plus gas. इनके भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. सॉलिड प्लस गैस एग्जांपल्स, गैस प्लस गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस, liquid in gas. So many examples are there. We are going to focus over the method to express the concentration. For expressing the concentration of solution, we are going to start. Next topic is expression for the concentration of solution. Expression for concentration of solution. There are large number of ways, means 8 and 9 ways by which can express the concentration of solution. Like, first of all, mass percentage. Second one is volume percentage. Third one is mass upon volume percentage. Mass and volume percentage. Fourth one is molarity. Fifth one is formality. This one is capital one, capital F. And the sixth one is molarity, normality, formality, molality. Molality, small m. Seventh one is ppm, part per million. इसको बोलेंगे क्या? ppm. And the last one we can say mole fraction. Mole fraction. These are the ways by which we can express the concentration of solution. First is the mass percentage. Mass percentage. Mass percentage means amount. We can mass percentage is defined as mass of one component per 100 part of solution. Mass of one component per 100 part of solution. We can write this: mass of one component per 100 part of per 100 mass per 100 part of part by mass of solution, called mass percentage. For example, we can say mass percentage of solute. अगर solute को लें तो इसको हम कह सकते हैं WB. B for indicate for the solute. तो हम क्या कर सकते हैं? Weight of solute upon weight of solution into 100. This is the means weight percentage, mass percentage of solute means weight of solute upon weight of solute plus weight of solvent into 100. These things we have already studied in 11th class. Means this is the weight of solute. B is expressed as a solute. B को हम हमेशा solute लिखेंगे और A को क्या लिखेंगे? Solvent. पूरी केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हमको ये ध्यान देना है. Means B for solute or A for solvent. For example, we can say 5% aqueous solution of NaCl means
5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl का क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 5 ग्राम अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो 5%, या इसी को हम दूसरे तरह से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 95 ग्राम, इंपॉर्टेंट है, 95 ग्राम ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो यहां 5 वेट ऑफ सोल्यूट क्या ले लें, 5 ग्राम, यहां पे वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा 5 ग्राम, और ये वेट वाटर का वेट कितना हो जाएगा 95 प्लस 5 100, और 100 से हम उसको क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 5% आ रहा है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये दोनों बातों को ध्यान देने पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। 5% NaCl सोल्यूशन का मतलब केवल यही नहीं कि 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह से हम वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में करेंगे, तो कैसे कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में? एक सेकेंड, वॉल्यूम परसेंटेज भी हम लोग देख लेते हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी भी हम ध्यान दें। साफ नहीं हुआ ठीक से, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए सेम means in the place of mass simply we use volume, means volume of one component per 100 volume of solution, केवल यही चेंज कर देना है आपको, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मीन्स फार्मूला भी आपका सेम हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सिमिलरली मास परसेंटेज हम उसको मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है, जो 11th में हम पढ़े थे, वो है मोलैरिटी। ये हमको ज़्यादा पढ़ना है, इसको 11th में भी पढ़े थे, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, ये केवल ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखो, बाकी कोई रखने की जरूरत नहीं। मोलैरिटी क्या पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में, इसको पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in number of moles of solute dissolved in per liter of solution called molarity। यानी दो बातें हमको देखनी है, नंबर ऑफ मोल्स लेना है, किसमें डिसॉल्व करेंगे, इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, यानी सभी जगह हमको सोल्यूशन ही लेना है एक्सेप्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं। इस हिसाब से अगर हम फार्मूला बनाएं मोलैरिटी का, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल्स क्या होता, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गया, मोल्स की बात, ये तो केवल मोल्स हुआ, डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन किसमें, लीटर, इन लीटर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, M, वेट ऑफ सोल्यूट को हम WB, मॉलिक्यूलर मास को MB, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम अगर ml में करेंगे तो अपान नीचे 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा मोलैरिटी। It means weight of solute upon molecular mass, volume in ml, तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर। ये तो एक फार्मूला हो गया मोलैरिटी का।
इसी से हम लोग दूसरे फार्मूले भी इसके बनाते हैं। जैसे एक फार्मूला आपका आता है कि मोलैरिटी को हम लोग परसेंटेज किस फॉर्म में लेते हैं, वेट अपॉन वेट, जो ये लिया था, इनटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहीं से बन जाएगा। परसेंटेज अगर हम ले रहे हैं तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वेट परसेंटेज की जगह क्या हो जाएगा, वेट हम ले रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी, यहाँ डिवाइडेड बाय 100 है, तो हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सेम फार्मूला है, यानी केवल वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। यानी इसका हम एक फार्मूला बना सकते हैं, मोलैरिटी परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन mv. This is the formula. Means molarity can be expressed by this formula also. Now the third, molarity के सवाल और भी दूसरी तरह से लगाए जा सकते हैं। मोलैरिटी के दूसरे तरह से सवाल कैसे, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक दूसरे तरह का सॉल्यूशन है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, या एक कोई सॉल्यूशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें और दूसरा सॉल्यूशन मिला दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, यानी उसके कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरा पार्ट अगर हम लोग देखें, यानी मोलैरिटी पे ही अगर देखें, क्या कर रहे थे कि सपोज दिस वन इज a solution whose molarity is m1, suppose its volume is v1, now it is diluted, इसको क्या करें, डाइल्यूट करें। डाइल्यूट मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इसमें ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ अब हम इसको चेंज कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा v2, तो m2 क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते थे क्या, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा, बिफोर, देखो इधर, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन सेम होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, m1 v1, और इधर क्या है, m2 v2। यानी अगर हम फार्मूला लगाएं, मान लो सपोज करो कि हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी कुछ है, उससे 1 लीटर बना दें। फिर से बोल रहा हूं, अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है, 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml हमारे पास ये है, और मोलैरिटी उसकी कुछ है, मान लो 0.025। इससे हमको 1 लीटर बना देना है, इसका मतलब 1000 ml बना देना है, तो मोलैरिटी तो उसकी चेंज होगी ना, कितनी होगी, इसको इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, m1 v1 अपॉन m2 v2। तो all these formula, either this and these are the formula for the determining the molarity। और भी फार्मूले हो सकते हैं, कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक एसिड है, उसमें कोई दूसरा एसिड मिला दें, 2 सॉल्यूशन को मिला दें, तो उसका कंसंट्रेशन तीसरे सॉल्यूशन का थोड़ा चेंज होगा, वो भी फार्मूला लगा सकते हैं। वहां पे हम लोग करते हैं m1 v1 पहले, और उसमें मिला दिया, मिक्स किया m2 v2 को, एक नया सॉल्यूशन तैयार हो गया m3। अब यहाँ पे क्या होगा, v1 प्लस v2, यानी m3 का कंसंट्रेशन निकालना है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपान v1 प्लस v2, ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपके एनसीईआरटी मींस वैकेंसी सीबीएसई में नहीं, मतलब ये कॉम्पिटिटिव के लिए कर सकते हैं। इसमें 500 तरह के सवाल बन सकते हैं। 500 तरह के सवाल का मतलब कि अगर हम ध्यान दें तो कोई हमारे पास सिंपल एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें दूसरा एसिड मिला दिया, उसका कंसंट्रेशन अगर हमको पता है, वॉल्यूम पता है, तो तीसरा मींस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। जब हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे
तो उसका पीएच निकल जाएगा। मीन्स ऐसे सवाल पीएच यानी जो हम लोग इक्विलिब्रियम सेकंड चैप्टर पढ़े थे 11th क्लास में, उस पे सैकड़ों तरह के सवाल बनेंगे। क्यों? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक एसिड है दूसरा बेस है, दोनों को मिक्स किया तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का कुछ न कुछ कंसंट्रेशन होगा। आइदर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन उसमें कुछ बचेगा, उसका हम लोग कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, फिर उससे पीएच निकाल लेंगे। तो इस पे जो बच्चे इसमें छुट्टियों में बैठे हुए घर पे, उस पे आप सवाल लगाइए। मीन्स आप इक्विलिब्रियम चैप्टर को भी पीछे का भी रिवीजन करते जाइए, ये कोई पीछे का भी रिवीजन होता रहेगा कंपटीशन के लिए, और आगे का भी कर। इसमें डायल्यूशन पे बहुत सारे सवाल करिए। और मोलैरिटी तो आपके 11th में भी था और इसमें 12th में भी है, तो मोलैरिटी पे भी डिफरेंट तरह के सवाल लगाइए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज नथिंग, इट इज सिंपली मोलैरिटी। हाउ इट इज डिफरेंट, व्हाई वी यूज द टर्म फॉर्मेलिटी, वी कैन से हियर वी विल सी फॉर्मेलिटी टर्म क्या होता है। फॉर्मेलिटी, देखो फॉर्मेलिटी ही होता है, ये नहीं जैसे कहते हैं हम कि जो किसी घर में गए 4 रसगुल्ला आया, धीरे से एक थोड़ा सा तोड़ के खा लिया तो हो गई फॉर्मेलिटी। उसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मेलिटी करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं ये सिंपली मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए है। अगर आयनिक कंपाउंड के लिए लें तो उसी को लिए इस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मूला मास। इन द प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वी विल सिंपली यूज द फार्मूला मास। मीन्स ये किसके लिए होगा, सॉल्यूशन हैविंग आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl इन वाटर। तो आप जानते हो NaCl तो कोई कंपाउंड नहीं है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आयंस। यहां जानते हो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। तो इसके मास को हम लोग बेटर होगा मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास कहें। जब फार्मूला मास कहेंगे तो यहाँ पे हम केवल उसी की वैल्यू को रख देंगे। जैसे अगर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, लेकिन इसको हम लोग फार्मूला मास क्यों कर रहे हैं। जैसे सोडियम का मास कितना है 23, इसका कितना है 35.5, ये 58.5 आप रखते हो, यहाँ पे भी रखते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास। तो इसलिए यही मोलैरिटी अब क्या हो जाएगी, फॉर्मेलिटी। अब क्या हो जाएगी, फॉर्मेलिटी। उसी तरह नेक्स्ट टर्म्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा है हम लोग करने जा रहे हैं पीपीएम के बारे में थोड़ा देखेंगे। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट पर मिलियन के बारे में, फिर मूल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा एक कंसेप्ट जो है 3 तक हम पहुंचेंगे। हमको ये दोनों कंसेप्ट और भी पढ़ने हैं और उसको ध्यान देना है। थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा गंदा नाउ पीपीएम क्या बोलते हैं इसको, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन जिसको पीपीएम कहते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ मीन्स इन पार्ट पर मिलियन। जैसे परसेंटेज क्या करते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते थे तो पर 1000 होता था, पर 100 होता था, पर 100 को परसेंट बोलते हैं। उसी तरह अगर पर 1000 कर देंगे पीपीटी